5-dihydroxycholecalciferol. Okay, this is the calcitriol, which is the active form of vitamin D. So, by the deficiency of vitamin D, rickets in children and osteomalacia in adults, और osteomalacia हो जाता है तो osteoporosis will also be there. Decreased density of bones, that is the osteoporosis. And renal rickets, renal rickets का रीजन क्या है कि अगर पर्सन की किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं है तो किडनी डिसफंक्शन की वजह से रीनल रिकैट्स हो सकता है. ओके, क्योंकि आपने जो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस देखा कि वन हाइड्रोक्सिलेशन अगर इन द किडनी. ओके, एज वेल एज कुछ जो in some people who cover the entire body for religious customs, vitamin D deficiency is also observed. Okay, क्योंकि सनलाइट जो एक्सपोजर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है. और रिकेट्स जैसा आपको बताया, रिकेट्स इन द चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन द adults. See, in rickets, skeletal pain and bone deformities will be there. Bow legs, बड़े हुए बिल्कुल ऐसे जैसे तीर कमान जैसे जो है. Okay, bow legs, fracture susceptibility will be there. Weakness, hypotonia, disturb in the growth, bone growth will also disturb. Prominent costochondrial junctions, that is the ricketic rosary, Harrison's groove, indentation of lower ribs, hypocalcemia will also occur in the rickets. And osteomalacia, in this diffuse skeletal pain, bone tenderness, to fracture, gait disturbance, that is a normal walking pattern is not there, proximal muscle weakness and hypotonia will also occur in the osteomalacia. You can see this one is the normal bones, and while in rickets or osteomalacia, some porosity there due to the decreased level of calcium in bones. Okay. Sir, previous slide, some bow please. legs. Okay, sir. Thank you. Okay. So rickets is a skeletal disorder, softening and weakening of bones in the children. You can see in figure bow legs, legs of rickets suffering children. That's caused by the lack of vitamin D, lack of calcium. क्योंकि vitamin D का main function क्या है? Vitamin D main function, it helps to maintain the serum calcium level or the phosphate. These nutrients are important for the development of strong and healthy bones. Okay, this one the normal bones, this one in the rickets. Okay. अब जितने स्टूडेंट्स आने थे वो आ गए, हम क्लास लॉक कर देते हैं ना. This conference will now be recorded. हाँ जी. So rickets in children is characterized by bone deformities due to the incomplete mineralization. Incomplete mineralization because of lacking of the calcium. अब कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर डिपोजिशन कैल्शियम का नहीं हो रहा है, रिजल्टिंग सॉफ्ट एंड प्लेबल बोन्स as well as delay in the teeth formation in children. And the weight bearing bones are bent to form the bow legs. In rickets, the plasma level of calcitriol is decreased. Calcitriol, which is the active form of vitamin D, and the alkaline phosphatase activity is elevated. Alkaline phosphatase activities is related with the bone disorder.
So alkaline phosphatase is ये आप पढ़ेंगे enzymes में. Alkaline phosphatase is an enzyme is concerned with the process of bone formation. Overproduction of alkaline phosphatase related to more cellular activity of the bones. Okay, so rickets is also related with the increased activity of alkaline phosphatase. You can see some of these bone disease, alkaline phosphatase in bone disease, in Paget disease, alkaline phosphatase activity increased 10 to 25 times due to osteoblastic cells activity. In osteomalacia, आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी है, बट आपको alkaline phosphatase आया है, इसीलिए चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि alkaline phosphatase किन्हीं other bone disease से related है, not only with the vitamin D or calcium. Osteomalacia, there is moderate increase in alkaline phosphatase. You can see in rickets. Rickets, all alkaline phosphatase activity increase 2 to 4 times. Okay. So these are the activity of alkaline phosphatase in bone disease. Alkaline phosphatase activity in adults is about 37 to 116 unit per liter, international unit. आप बोन्स में वो सॉरी एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज एन एंजाइम, तो एंजाइम की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ना ये आई इसमें मिसिंग है, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर इज कंसीडर्ड नॉर्मल. तो उसको ना जैसे आपने आपको शुगर या शुगर के बारे में पढ़ा या आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा, उसकी वैल्यू हम बताते हैं एमजी पर डीएल में, लेकिन एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेजर्ड इन इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर एज वेल एज सोमोजाई यूनिट. एंजाइम्स आपको पढ़ाए जाएंगे तब आप उसके बारे में देखेंगे. और ओके, एंड इन चिल्ड्रन its activity is 104, its level is the 104 to 345 unit per liter. Sir, why alkaline phosphatase will increase in case of disease? Right. Increase of case of bone disease. This one. हाँ सर, क्यों इंक्रीज करेंगे? ये बताए ना. Alkaline phosphatase की एक्टिविटी बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेट जो है उस पे रिएक्शन बहुत ज्यादा दिखाएगा, और कैल्शियम का लेवल ना कैल्शियम के लेवल से रिलेटेड है. हम आपको लो फॉस्फेट लेवल बताया था, उसमें एक आपको पीछे स्लाइड पे चलते हैं एक सेकंड. सर थोड़े स्टूडेंट अभी सर बाहर हैं, जरा तो मीटिंग थोड़ी अनलॉक होती है. हाँ उड़िया, देखिए यहाँ for synthesis of active form of vitamin D, calcitriol, you can see low phosphate level stimulate the synthesis of calcitriol. Yes, sir. Okay, इसकी वजह से जो alkaline phosphatase की एक्टिविटी है, अगर लो फॉस्फेट, इसको दोनों रिएक्शन ना पॉजिटिवली कोरिलेशन हो रहा है दोनों का. ठीक, इसकी वजह से जो alkaline phosphatase की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. और एक बात आपको और बताया था कि कैल्शियम और फॉस्फेट का जो मल्टीप्लिकेशन जो दोनों की वैल्यूज का करेंगे, इट इज 40 इन एडल्ट्स, जबकि चिल्ड्रन में और ग्रोइंग एज में ये लगभग 50 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, 60 तक भी जा सकता है. कैल्शियम और फॉस्फेट जो आपस में रिलेट करते हैं. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ओके, then osteomalacia. Osteomalacia you can see which is found in the adults. This is adult rickets, you can see. And in this diffuse joint and bone pain, especially of the spine, pelvis and the legs, muscle weakness, person difficult to walk, difficult walking, hypocalcemia,
positive sign. I will explain you about this sign. Hypocalcemia occur and the compressed vertebra and the diminished stature, pelvic flattening, weak and soft bones, और weak और soft bones होंगी तो easily susceptible to fracture. जैसे देखा कि ओल्ड एज में क्या होता है कि कोई अगर वॉशरूम में गए थे और हल्का सा स्लिप हुए और फ्रैक्चर हो गया. Okay, so easily susceptible to fracture due to the decreased level of calcium basically. Okay, and this sign generally क्या हो रहा है is a clinical sign of existing nerve hyperexcitability. टिटेनी, टिटेनी आप कैल्शियम में भी पढ़ाया जाएगा आपको टिटेनी के बारे में. There is a hyperexcitability which is seen in the hypocalcemia. तो आप जब hypocalcemia आपको मिनरल्स में पढ़ाया जाएगा तब आप इस साइन के बारे में वहां पे भी पढ़ेंगे. In this sign there is abnormal reaction to the stimulation of the facial nerve. Some person show this sign, okay, due to the stimulation of the facial nerve.
कैल्शियम आप दे रहे हैं, लेकिन there's basically defect in the receptor. So the bone disease has been found to respond to the mega dose of the calcitriol, which is about 35 mg per day. Calcitriol is given to the patient. Fanconi syndrome, यहाँ पे देखिए, that is defective renal tubular reabsorption of the phosphate, bicarbonate, glucose, as well as amino acids. Okay, Fanconi syndrome. But excess of vitamin D is toxic, which can cause the headache, nausea, vomiting, anorexia. Anorexia means भूख ना लगना, कम भूख लगनी, polyuria, irreversible renal damage, calcification in the soft tissue. अगर बहुत ज्यादा विटामिन डी इनटेक हो रहा है तो उसकी वजह से कैल्सिफिकेशन जो सॉफ्ट टिश्यूज में होने लगेगा इन लाइक मसल्स, जॉइंट्स. So sometimes which can cause the calcinosis. Calcinosis due to the high calcium level. Calcinosis में क्या होगा? Like this. ठीक है, अलग अलग ये जो ना थोड़ी गांठें सी ये nodules से due to the increased level of calcium. Like this. हाथों में भी देखिए, पाम में इस तरीके के जो है डिपोजिट, कैल्शियम के डिपोजिट होने की वजह से कैल्सिनोसिस हो सकता है. ओके, हाँ जी, Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Then finally we have finished with the vitamin D. आपको विटामिन डी हमने जो कंप्लीट किया है इसमें आप सुन लीजिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एक तो वो विटामिन डी की जो हाउ मिनरल से थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए करते हैं. व्हाट्स द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल, हाउ इट इज मेंटेन्ड बाय द विटामिन डी. तो आपको जो वो डायग्राम आपका यू सत्यनारायण में दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया था, उसको बनाते हुए आपको एक्सप्लेन करते हुए उसके बारे में देखना है. वो तीन बेसिकली आप उनको कॉजेस पे जाना, किस तरीके से विटामिन डी जो है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है. तो वो क्वेश्चन जो है आता है. एक एक क्वेश्चन आपको बताया था इसके जो डिसऑर्डर्स हैं, चाहे आप रिकेट्स आ जाए एग्जाम में, चाहे ऑस्टियोमलेशिया आ जाए या रीनल रिकेट्स आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम. ओके, so then we start with the another fat soluble vitamin, vitamin E. Vitamin E is a naturally occurring antioxidant or antioxidants which reduce the toxic effect of free radicals. तो जितना आप इस समय ये कोरोना में भी चल रहा है कि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच टाइप है कि अपनी इम्यूनिटी जो है वो प्रॉपर रखिए. तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी क्या है कि हमारी मतलब हमें कहीं ना कहीं
फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट से बचा रहे हैं। और जैसे आप विटामिन सी भी अगर ले रहे हैं, तो विटामिन सी को सिट्रस, आज उसके लिए आजकल काफी पता है, लाइम जो है, लेमन जूस आप वो लीजिए पानी में डाल के, तो वो जनरली क्या हो रहा है कि उसकी वजह से दैट इज आल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है विटामिन सी। ओके, सो विटामिन ई, its chemical name is the tocopherol and trinols। तो यहाँ पे टोकोफेरॉल जो है वो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा 4 फॉर्म्स में मिलता है, बट अल्फा is more active form। okay, so they are naturally occurring antioxidant। इसके साथ साथ इट इज एन एंटी स्टेराइल विटामिन, एंटी स्टेराइल विटामिन है, तो स्टेरिलिटी जो है इसकी वजह से अगर पर्सन हाई डोज ऑफ विटामिन ई ले रहा है तो इट प्रिवेंट द स्टेरिलिटी, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एंटी एजिंग फैक्टर। एंटी एजिंग, these are the vitamin E properties: naturally occurring antioxidant, anti-steroidal vitamin and anti-aging factor। anti-aging आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई आपने देखा कि पर्सन की एज है 40 इयर्स बट वो लुक लाइक 50 इयर्स। तो विटामिन ई की जो हाई डोज है वो किसी भी तरीके से आपको सारे से फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने की वजह से, चाहे हार्ट डिजीज हो या लंग डिजीज, सभी में मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट है विटामिन ई का, बिकॉज दिस इज अ नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनके 4 फॉर्म्स के बारे में बताया, बट अल्फा टोकोफेरॉल is more physiological active form of vitamin E। Okay, in the dietary sources, almonds, green olives, sunflower oil, okay, red chili powder, cold pressed plant oils, pine nuts, dried apricots, these are the sources of vitamin E। corn oil, okay। Daily requirement of vitamin E in women about 5 to 8 mg, and men 8 to 10 mg per day, but during pregnancy and lactation requirement is more about। हाँ फिर जी, ड्राई एप्रिकॉट क्यों रहेगा, वेट वाला क्यों नहीं? मतलब ड्राई में ही क्यों रहेगा, मतलब विटामिन ई वेट वाले में क्यों नहीं? वेट वाले में क्यों नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने। अच्छा, देखते हैं इस तरीके का ड्राई और वेट में जो क्या डिफरेंस है। लेकिन एक बात ये भी है, ये इंटरनेट से लिया हुआ मतलब आर्टिकल है, ये ड्राइड और वेट वाला जो आप बता रहे हो, तो इतना मैंने इस पर नोटिस नहीं किया था, ड्राइड और वेट एप्रिकॉट्स थे। ओके, लेकिन मैं देखता हूँ, ठीक है बेटा। ओके, ओके सर, ओके। क्योंकि ड्राइड में दिखा रहा है, वेट में नहीं दिखा रहा है, या फिर तो ये किसी तरीके से रॉन्ग हो, या फिर और चेक करते हैं इसको, ड्राइड में है वेट में क्यों नहीं है। ओके, so daily requirement of vitamin E, women 5 to 8 mg per day, in men 8 to 10 mg per day, during pregnancy and lactation requirement is about 10 to 15 mg per day। then absorption of fat vitamin E, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए लाइक फैट्स, विटामिन ई रिक्वायर्ड बाइल सॉल्ट्स। सो बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, आपने वो पढ़ाया जाएगा आपको जब लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया जाएगा। ओके, विटामिन ई रिक्वायर बाइल सॉल्ट्स फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन व्हिच अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज देन पैक्ड इन काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन इज अ लाइपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रोन जो है वो लाइपोप्रोटीन है, जो लाइपोप्रोटीन्स में आपको फंक्शन बताया था कि लाइपोप्रोटीन आपको बताए थे काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल। तो उसमें जो काइलोमाइक्रोन है विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोजिनस फैट, एक्सोजिनस जो हम डाइटरी लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्सोजिनस लिपिड्स को। ओके, so chylomicron is then packed in chylomicron, in which form it is transported in the plasma।
अब कौन कौन बाहर रह गए हैं? Okay. Then function of vitamin E, antioxidant, most powerful naturally occurring antioxidant, free radicals scavengers. तो फ्री रेडिकल्स जो हैं उनको बिल्कुल उनके डैमेज, उनके द्वारा होने वाले डैमेज को कम कर रहा है, उनको बाहर कर रहा है. ओके, इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन. तो फ्री रेडिकल्स का जो एक्शन ना वो कहीं भी हो सकता है. आप अगर मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, तो वो तो सभी जगह पे, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की वजह से आप अगर देखें कार्डियक डिजीज में भी ये हेल्पफुल है विटामिन ई. और आपको एंटी एजिंग भी बताया. ओके, सो इट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट द एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, it protection of double bonds in polyunsaturated fatty acids, PUFA. जो आपने लिपिड्स में पढ़ा था प्यूफा के बारे में. कौन कौन से प्यूफा थे बताइए? हाँ जी, बताइए. लिनोइक और एराकिडोनिक. हाँ जी, एराकिडोनिक एसिड. तो ये तो तीन तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में काउंट होते हैं. ओके, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में स्पेशली प्यूफा पूछा जा रहा है तो आप जो आपने अदर्स और भी पढ़े हैं एसेंशियल के अलावा, वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, दोनों चीजें थोड़ा सा वेरी कर रही होते हैं, क्योंकि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स में जो आपने तीनों बताए हैं वो तीनों प्यूफा में भी इंक्लूडेड हैं, मतलब वो तीनों प्यूफा भी हैं, लेकिन और कुछ आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं प्यूफा. ओके ओके. प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी आपको फैट में रेंसिडिटी के बारे में बताया था, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल इन द फैट. सो विटामिन ई इट प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी. तो आप जो भी अगर रिफाइंड वगैरह कुछ ऐसा देखेंगे जो घर पे पैकेट भी आता हो, तो कुछ एक रिफाइंड में विटामिन ई भी ऐड किया हुआ आपको शायद मिल जाए, टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी. जिससे कि क्या होगा, रेंसिडिटी अगर फैट की नहीं होगी, तो फैट अगर रेंसिड नहीं होगा तो उसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वो बढ़ जाएगी. थोड़ा सा कुछ टाइम जो है मतलब ज्यादा दिनों तक के लिए भी वो रखा रह सकता है सही कंडीशन में. ओके, इट वर्क्स इन कंजक्शन विद सेलेनियम. सेलेनियम के बारे में बताएंगे आपको, अभी सेलेनियम आएगा, वहां पे मैंने एक स्लाइड डाला हुआ है, तो सेलेनियम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. Vitamin E also play a role in neurological function and inhibition of the platelets aggregation. Okay, vitamin E also protect lipids and prevents the oxidation of PUFA. It is anti-atherogenic effect. Anti-atherogenic effect जो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था, एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया था. What's the एथेरोस्क्लेरोसिस? हाँ जी बताइए. नैरोइंग ऑफ कैपिलरी. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटीमा ऑफ आर्टरी विल डिक्रीज व्हिच कैन कॉज द सम हार्ट डिजीज. ओके, ये सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए, और इसमें आप थोड़ा सा बस एक नजर मार लीजिए. विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन ई प्रोटेक्ट आरबीसी फ्रॉम hemolysis by preventing the peroxidation. It keeps the structural and functional integrity of all cells. इसकी वजह से वो सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया था. And gradual deterioration of aging process is due to the free radicals. और फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर रहा है
vitamin E. So vitamin E also boosts the immune response. It reduce the risk of atherosclerosis, जो आपको एंटी एथेरोजेनिक इफेक्ट के बारे में बताया था. And vitamin E can depress the leukocytes oxidative bactericidal activity. And vitamin E is also beneficial in Alzheimer disease, skin disorder, cancer, heart disease. बहुत सारे डिजीज में विटामिन E इन्वॉल्व रह सकता है. Then the interrelationship between selenium and vitamin E. जो आपको selenium अभी आया था वो मैंने कहा था आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं selenium के बारे में. तो selenium which is present in the glutathione peroxidase. Glutathione आपने कहाँ पढ़ा था बताइए. हाँ जी स्टूडेंट्स, ग्लूटाथायोन आपने पढ़ा हुआ ग्लूटामिक है. एसिड नॉट ग्लूटामिक Glorious एसिड. acid. आपने जब आपको प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स पढ़ाए गए थे वहां पे आया हुआ एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स. पढ़े थे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स जिसमें आपने पढ़ा होगा ग्लूटाथायोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ब्रेडिकाइनिन, कैलिक्रीन, इन सब के बारे में पढ़ा होगा. तो ग्लूटाथायोन इज वन ऑफ देम. और ग्लूटाथायोन यहाँ मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं. तो ग्लूटाथायोन अरे इज अ ट्राइपेप्टाइड. वहां पे आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में. ट्राइपेप्टाइड है और ट्राइपेप्टाइड हो तो कितने अमीनो एसिड होंगे इसमें? 3. So its name is the gamma glutamyl cystinyl glycine. एग्जाम में आता भी है ग्लूटाथायोन के बारे में, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. So glutathione which is a tripeptide which contain the gamma glutamyl cystinyl glycine. तो इसमें एमिनो एसिड्स कौन से प्रेजेंट हैं? ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन. These 3 amino acids are present in the glutathione. Okay? लिख लेना इसको, कहीं एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी व्हाट्सएप ग्लूटाथायोन, या आपसे एमसीक्यूज वगैरह में भी कुछ पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड. ओके. The glutathione is a tripeptide which is a gamma glutamyl cystinyl glycine. Okay. ये फिर आ गया कोई बाहर से? इसको बाहर. सर ट्राइपेप्टाइड होंगे तो 4 अमीनो एसिड होंगे ना? नहीं बेटा 3 ही होंगे. सर ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड ना सर? नहीं बेटा, ट्राइपेप्टाइड का मतलब यहाँ 3 एमिनो एसिड्स है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड से नहीं. ओके सर, थैंक यू सर. ओके.
हाँ जी सुनिए, तो सेलेनियम विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, आपको एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाएंगे तब इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे व्हाट्स द ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज. So glutathione peroxidase is an enzyme which is required to reduce the toxic effect of free radicals. Is an enzyme, important enzyme which oxidize and destroy the free radicals. So selenium has been found to decrease the requirement of vitamin E. अगर पर्सन सेलेनियम प्रॉपर अमाउंट में ले रहा है, so it causes decrease the requirement of vitamin E. मतलब सेलेनियम और सेलेनियम ले लिया या विटामिन ई ले लिया, दोनों में से काम चल रहा है. ओके, सो दे एक्ट synergistically to minimize the lipid peroxidation. ओके, लिपिड्स के peroxidation को डिक्रीज कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखिए, आप उससे पहले फ्री रेडिकल समझ लीजिए. एक सेकेंड. तो फ्री रेडिकल्स के बारे में हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. फ्री रेडिकल्स आर those are having unpaired electron shell. Unpaired electron shell, so to complete their electron shell they are highly reactive. So these are an uncharged molecule, typically highly reactive and short-lived, which is having an unpaired valence electrons. जैसे आपने वो Aufbau rule पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में. Aufbau rule पढ़ा था, तो वो एक ऐसे करके ना उसमें आप शायद ऐसे करके कुछ बनाते थे. तो एक बनाते थे आप पेयरिंग करते थे ना इसकी ऐसे करके. हाँ जी, पढ़ा था कुछ केमिस्ट्री में ऐसा. हाँ Yes, पढ़ा हाँ था. sir. सर याद तो आ रहा है. तो याद आ रहा है. तो जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की सभी की टेंडेंसी क्या रहती है कि अपना जो ऑक्टेन है जो लास्ट वाले शेल में वो कंप्लीट हो जाए. सारे केमिस्ट्री के जितने मॉलिक्यूल्स हैं आप जो पढ़ते हैं बॉन्डिंग या किसी भी तरीके से, उनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि अपनी जो लास्ट वाली है वो ऑर्बिट वो कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ फ्री रेडिकल्स की भी वही टेंडेंसी है. सो अगर फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में है कहीं भी किसी भी तरीके से जनरेट हो रहे हैं या हम जिस एनवायरनमेंट में है उसके द्वारा कहीं ना कहीं हम फ्री रेडिकल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ले रहे हैं कहीं ना कहीं से फ्री रेडिकल्स, तो उनकी टेंडेंसी क्या रहेगी, अगर हमारे शरीर में आए हैं तो हमारे शरीर को डैमेज करेंगे. हमारे शरीर में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन्हीं सबको डैमेज करेंगे. जैसे आपने अगर सेल की स्ट्रक्चर या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पे वही सब था, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, तो इन्हीं सबको डैमेज करेंगे. सो फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए वी आर रिक्वायरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स. और यहाँ पे आप फ्री रेडिकल्स का यहाँ पे आप देखिए, these are the free radicals. एक सेकेंड. ऑक्सीजन, सुपरऑक्साइड एनायंस, peroxide anions, हाइड्रोजन peroxides, hydroxyl radicals, hydroxyl ions, these are the free radicals. तो फ्री रेडिकल्स और भी अलग से भी बताएंगे आपको फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में. ओके, तो दीज आर द फ्री रेडिकल्स. इनकी टेंडेंसी क्या है कि हमारा जो ऑक्टेन है वो लास्ट में कंप्लीट हो जाए. ओके, और हम फ्री रेडिकल्स कैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं, बाय द यूवी लाइट, बाय रेडिएशन, बाय स्मोकिंग, बाय एयर पॉल्यूशन, बाय इन्फ्लेमेशन, free radicals are generated. So as well as free radicals also produced by various biochemical reactions in our body, and in the lipid peroxidation free radicals generated. Okay,
एनवायरनमेंट से भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम वैसे भी बाहर से जो हमारे शरीर के अंदर भी जनरेट हो रहे हैं बाय द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, और टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके वो कंप्लीट हो गए, तो जिसकी वजह से वो फ्री रेडिकल्स का जो टॉक्सिक इफेक्ट आना चाहिए था वो खत्म हो गया, ओवरकम हो गया। ओके, टू रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड। एंटीऑक्सीडेंट्स में जो विटामिन में आप पढ़ते हैं, नेचुरली अपिंग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई है एक तो, और इसके साथ साथ विटामिन सी। विटामिन सी जो है, जो आप आजकल लेमन में जो विटामिन सी प्रेजेंट है, और कोरोना में भी बहुत सारे लोग ना आजकल लेमन क्या कहते हैं, ऑरेंज जूस ले लीजिए, उसमें भी है विटामिन सी। और लेमन में भी आप देख रहे हैं, तो लेमन में क्या हो रहा है कि वो आजकल गर्म पानी में और नींबू डाल के दे देते हैं, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो हो रही है विटामिन सी की वजह से। ओके, अब विटामिन सी का यहाँ पे आप देखिए, एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द एक्शन ऑफ द विटामिन ई, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा, हर जगह नहीं मिलती। लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल्स एंड दिस इज द रिड्यूस्ड विटामिन ई। तो रिड्यूस्ड विटामिन ई क्या काम कर रहा है, फ्री रेडिकल्स को के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करते समय, सुन लीजिएगा, ये आप नोट भी कर लेना, ये हर जगह नहीं मिलेगा ये बार आपको। लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल्स हैं जो फ्री रेडिकल्स हैं, दिस वन। तो विटामिन ई जब रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये फ्री रेडिकल्स को यहाँ पे देखिए, इसने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी है, सुपर इस तरीके से शो हो रहा था, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में NOOH। सो दिस इज द टोकोफेरॉल टोकोफेरॉक्सिल रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स का टॉक्सिक इफेक्ट इसने कम कर दिया, बट विटामिन ई जो था, जो रिड्यूस्ड फॉर्म में था, वो यहाँ देखिए फ्री रेडिकल के फॉर्म में आ गया एक तरीके से। विटामिन ई जो है वो फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट में डॉट लगा हुआ रहता है। जब विटामिन ई टॉक्सिक फॉर्म में आ गया, फ्री रेडिकल वाली फॉर्म में आ गया, तो विटामिन ई को दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए बाय द एक्शन ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी ने क्या काम किया कि विटामिन ई की जो सुपर ऑक्साइड वाली फॉर्म थी उसको कन्वर्ट करके वो नॉर्मल फॉर्म में ले आया। दैट इज द एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ऑफ द विटामिन ई एज वेल एज एक्शन ऑफ विटामिन सी विद विटामिन ई। एक्सक्यूज मी सर, ये हाँ जी। रिएक्शन फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है सर। ये रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है आपको, मैंने फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया, दिस वन सभी Yes, में sir. देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ था, ये थोड़ा सा पोजीशन इसका अलग है, इसी तरीके का स्लाइड मिलता है ना, सुपर स्क्रिप्ट में डॉट लगा हुआ रहेगा, ठीक है, विच इंडिकेट दिस इज अ फ्री रेडिकल। ओके, अब आप आ जाइए इस स्लाइड पे, दिस वन इज अ फ्री रेडिकल, लिपिड पेरोक्साइड रेडिकल, दिस वन इज फ्री रेडिकल। एरो जो मूव कर रहे हैं आ रहे हैं, शो हो रहा है, एक सेकेंड, यस सर। ठीक है। देखिए ये फ्री रेडिकल है, दिस वन इज फ्री रेडिकल। ओके, तो आपको पता है कि विटामिन ई का क्या काम है, ये फ्री रेडिकल के टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देता है, यही तो बताया आपको? यस सर, यस सर। ठीक हाँ, है। अब वो कैसे कम करता है, देखिए ये विटामिन ई जो है नेचुरल है, बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में है विटामिन ई, दिस वन EH जो शो हो रहा है, ये फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए यहाँ पे इसने क्या काम किया, इसका जो H था, दिस वन H, एक्सप्लेनेशन के पर्पज से इसने इसको डोनेट कर दिया। तो जो लिपिड पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स था, अब वो फ्री नहीं रह गया, ये तो फ्री नो सर। NOOH, हाँ, लेकिन यस सर। विटामिन ई इसको कन्वर्ट करते समय, फ्री रेडिकल से नॉर्मल फॉर्म में लाते समय, ये देखिए खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया एक तरीके से। यहाँ देखिए सुपर स्क्रिप्ट में विटामिन ई शो हो रहा है, यस सर। हाँ, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया एक तरीके से, खुद अपने आप में फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गया। फ्री रेडिकल कंडीशन में। हाँ, मतलब थोड़ा सा आ गया उसको, कुछ टाइम के लिए उसको कन्वर्ट होते समय, मतलब अगर जैसे कह रहे हैं ना कि आग बुझा रहा है, तो आग बुझाते में खुद थोड़ा सा जरा
लेकिन फिर क्या हुआ, विटामिन सी आया, विटामिन सी ने जो है विटामिन ई की जो ये वाली फॉर्म्स थी जो फ्री रेडिकल्स वाली, इसको कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आया। फिर विटामिन ई की आवश्यकता ही क्या है? विटामिन सी डायरेक्टली लिपिड पेरोक्साइड से रिएक्ट करके दिस इज उसको मैनेज नेचुरल रिएक्शन, आप ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में अगर सारा काम एक ही लोग करने लग जाएं, काम तो सभी लोग मिलके कर रहे हैं ना, एक तो अकेला कुछ नहीं कर सकता, काम तो सभी लोग मिलके कर रहे हैं। इस समय अगर चला रहे हैं तो विटामिन सी बहुत ले रहे हैं लोग। ओके, सर एक बच्चा, उसकी मीटिंग लेफ्ट हो गई, आप प्लीज अनलॉक कर देंगे। बीच में मैंने अनलॉक की थी, कोई अदर पर्सन भी एंट्री कर गया था। नहीं सर, उसकी अभी जस्ट लेफ्ट हुई है मीटिंग, नेटवर्क इश्यू की वजह से। ठीक है, ठीक है। ओके, अब आप आ जाइए, वो पीछे वाली वो सेलेनियम बाकी रह गया, सेलेनियम रह गया था ना बाकी। अभी आपको जब सेलेनियम एक्सप्लेन कर रहे थे, इंटररिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन सेलेनियम एंड विटामिन ई, यहाँ पे आप देखिए। तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और ग्लूटाथायोन रिडक्टेज दो एंजाइम है। तो सेलेनियम इज ए कंपोनेंट of glutathione peroxidase. A glutathione peroxidase is required to reduce the toxic effect of free radicals. इसमें आपको बताएंगे एक आप वहां पे पढ़ेंगे, एक सेकेंड, आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहां पे एक पाथवे आएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, एचएमपी शंट पाथवे। यहाँ पे एक पाथवे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एचएमपी शंट, और एचएमपी शंट पाथवे में एक आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इस पाथवे से हमें पहले तो बात है कि कोई एनर्जी नहीं मिलती है, इस पाथवे से हमें मिलता है NADPH, और हमें NADPH से एनर्जी नहीं मिलती है। NADPH का काम क्या होता है? इट गिव्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। इट गिव्स द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आप जो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज देख रहे हैं, तो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और रिडक्टेज है, इसकी कन्वर्जन के लिए वी आर आल्सो रिक्वायरिंग दिस NADPH, जो आपको HMP शंट में पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। ओके, NADPH क्या काम करता है? ग्लूटाथायोन जो है उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में बना के रखता है। NADPH का फंक्शन यहाँ पे ये रहता है, NADPH ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है, क्योंकि बार बार अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसको दोबारा बैक लाने के लिए, आप समझने के लिए ये बात, ग्लूटाथायोन को ये रिड्यूस्ड फॉर्म में रोक के रखता है। दोबारा से ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन फिर उसको लाके उसने रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, दिस वन इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और यहाँ पे H अगर ऐड है, इट मींस दिस वन इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। और इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को यहाँ पे आप देखिए, दिस वन, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दिस NADPH, ये यहाँ पे NAD में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूटाथायोन विल गेट रिड्यूस्ड, दिस 2GSH, glutathione will be in the reduced form. Okay,
This one the antioxidant action. सर उसकी में मीटिंग अभी भी लॉग दिखा रही है। तो कर दिया था। तो 3 आ गए, सृष्टि आनंद, सुधांशु शर्मा। हो गया। सृष्टि अभी भी रह गई। ओके ओके स्टूडेंट्स, और ये विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल्स पे आते हैं, EVON 400, ये भी बहुत जो है देते हैं, यूज्ड फॉर द ग्लोइंग फेस, स्ट्रॉन्ग हेयर, nails, glowing skin, control hair, as well as some health related complication. Vitamin E is given. Okay. Or vitamin E is also used in treatment of asthma, for fertility, in prostate cancer, age related degeneration, cardiovascular disease health, cognitive function, bones and muscle health, fatty liver, air pollution. Okay. These are the benefits area in nutritional range and emerging role at higher dose. तो higher dose जो है cardiac disease में विटामिन ई की जो high dose देते हैं, and cognitive function के लिए भी आप विटामिन ई की high dose दे रहे हैं. Bone health, bone and muscle health, विटामिन ई is given to prevent the fatty liver. Fatty liver आपको पढ़ाया जाएगा, that is the accumulation of fat in liver. उसको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ई की हाई डोज दे रहे हैं. ओके. और कोई पर्सन पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा उसमें, वो भी विटामिन ई की डोज दे दी उसने. एंड सम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन which help reduce the risk of cataract. High dose of vitamin E help to reduce the risk of cataract. Okay. These are the role of vitamin E. So vitamin E deficiency is blood level of vitamin E below than 5 microgram per ml. So vitamin E deficiency is uncommon in full-term children and adults due to the wide availability in mother milk and some other foods. However, some premature infants have adequate vitamin E stores and manifest deficiency. And in chronic liver disease, malabsorption of intestine, cystic fibrosis, etc. can present with vitamin E deficiency both in children and in adults. तो विटामिन ई जो है जनरली आपने देखा सभी जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए है, डी है, ई एंड के, वो हमारे कहाँ स्टोर रहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन? हाँ जी, लिवर में. लिवर में स्टोर रहते हैं. तो कोई भी क्रोनिक लिवर डिजीज हो गई, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, तो उसमें विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली. ओके. देन द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द विटामिन ई आपको बताया गया था, इट इज द एंटी स्टेराइल विटामिन. तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी हो सकती है. ओके. नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प, नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प आपने कभी सोते सोते कभी ऐसा हुआ हो किसी के साथ? आप लोग 150 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कि काफ मसल्स में अचानक सोते सोते इतना पेन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें. पैर जो है किस पोजीशन में रखने की कोशिश करें कि वो पेन जो है वो चला जाए. कभी किसी को हुआ हो ऐसा? नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प हो जाएगी रात में सोते समय अचानक से, काफ मसल्स. ओके. एंड सम डीजनरेटिव चेंज इन मसल्स, एनीमिया due to the RBC hemolysis because of the increased membrane fragility, retinal pigment degeneration, and changes in the CNS, central nervous system also. Okay. Neurological deficiencies such as delayed milestone in premature infants, that is late start in standing, walking, crawling. तो कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं न्यूबॉर्न्स में, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में. हाइपोटोनिया एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया इन चिल्ड्रन, डीजनरेशन ऑफ द पोस्टीरियर. आप इन्हीं पॉइंट्स को बस चलाते हुए आपका काम हो जाएगा. स्टेरिलिटी, नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प, डीजनरेटिव चेंज इन मसल्स, एनीमिया,
like this. Degeneration of the posterior spinal column tract and the spinocerebral tract in adults. Neuropathy involving decreased vibration sense. Demyelination of nerves, cerebral ataxia due to the deficiency of vitamin E. And the therapeutic use of vitamin E, जैसे आपको यहाँ पे भी बताया था therapeutic use के बारे में. Cardiovascular health में, cognitive function, bone and muscle health, fatty liver, air pollution. In these conditions, vitamin E can be given to the patient. Nocturnal muscle cramp में भी दे सकते हैं. Intermittent coagulation, fibrocystic breast disease. In atherosclerosis, vitamin E can be used as a drug. Okay. Nocturnal muscle cramp, बिल्कुल रात में सोते समय अचानक से काफ मसल्स जो है वो उसमें पेन होने लगता है बहुत ज्यादा. Okay. Fibrocystic breast disease are composed of tissue that feel lumpy or rope-like in texture. This is the fibrocystic breast disease, or the nodular or glandular breast tissue will be there in fibrocystic breast disease. Okay. And next one is the atherosclerosis. Atherosclerosis, narrowing of artery, narrowing of intima of artery due to the deposition of fat, cholesterol. Okay. So due to the atherosclerosis, some cardiac disease will also be there. Atherosclerosis. Lipid metabolism में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में आएगा atherosclerosis के बारे में. Okay. So then we finish with the vitamin E also. Next is the fat soluble vitamin is the vitamin K. Vitamin K, which is present in vitamin K का function क्या है? हाँ जी. What's the function of vitamin? कैस्केड प्रोसेस में लग रहा था एक्टिवेशन ऑफ हमारी एंजाइम्स उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए. Blood clotting के लिए required है. Vitamin K help in the blood coagulation. और जनरली क्या है कि विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब कंप्लीट हो जाती है हमारे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती ब्लड क्लॉटिंग में. और विटामिन के प्रेजेंट इन द 3 फॉर्म्स बेसिकली. व्हाट्स द 3 फॉर्म्स? फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन एंड मीनडायोन. एमसीक्यूज पर्पस से याद रख लीजिएगा इन 3 फॉर्म्स के बारे में. फाइलोक्विनोन विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स, मीनाक्विनोन विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल्स, एंड मीनडायोन दैट इज द synthetic form of vitamin K. K1, K2 and K3. Okay. Structure छोड़िए आप. The K1 phyloquinone, K2 menaquinone and the meendione. Phyloquinone present in the plants, menaquinone present in the animals, and K3 meendione which is the synthetic form, artificial form of vitamin K. Vitamin K is the only fat soluble vitamin which shows the specific coenzyme function. अब coenzyme function किस तरीके से क्या हेल्प कर रहे हैं? जैसा आपने बताया कि विटामिन K help in the blood clotting, blood coagulation. So it is required for the production of blood clotting factor which is essential for the coagulation. तो ये clotting factor के लिए किस तरीके से require है? Vitamin K require as a cofactor for the post-translational modification of clotting factor 2nd, 7th, 9th and 10th. Vitamin K ये याद रख लीजिएगा, ये MCQs में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है. Which one is clotting factor doesn't require vitamin K for their post-translation modification? So vitamin K is required as a cofactor for the post-translational modification of clotting factor 2nd, 7th, 9th and 10th. अब वहां पे ये क्या काम करता है थोड़ा सा ध्यान कर लेना बस विटामिन के कंप्लीट कि आपने ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़ा था. ट्रांसलेशन में क्या होता है? प्रोटीन्स बनते हैं बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस.
आरएनए बनाता है प्रोटीन को, लेकिन वो प्रोटीन्स को कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर है। तो जो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनी है उसमें इन फैक्टर्स में, फैक्टर सेकंड में, सेवंथ में, नाइन्थ में और 10th में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है। बाय द एक्शन ऑफ विटामिन के, glutamic acid get converted into the gamma carboxy glutamate। विटामिन के का काम क्या है कि इन फैक्टर्स में, फैक्टर सेकंड, सेवंथ, नाइन्थ और 10th में ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, उसको ये कार्बोक्सिलेटेड कर देता है और आफ्टर कार्बोक्सिलेशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में, और ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक्टिव हो गए। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के। ये तो सब आपको बता ही दिया, इसको भी देख लो। चलो, विटामिन के is the coenzyme for carboxylation of glutamate in the post synthetic modification of some calcium binding proteins। Okay, there are 13 blood clotting factors, out of which second, seventh, ninth and 10th are synthesized in liver in inactive precursor form। ये inactive form में present है और इसमें glutamic acid present है। तो विटामिन के आया और उसने क्या काम किया कि ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट में। ओके, बाय द कार्बोक्सिलेशन। और विटामिन के इज एक्ट एज ए कोएंजाइम फॉर दिस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। विटामिन के, ओके, vitamin K is the cofactor for the carboxylation of glutamate residue in the post-synthetic modification of proteins to form the gamma carboxy glutamate। और gamma carboxy glutamate क्या काम करता है? Which chelates the calcium ions। आपने ब्लड क्लॉटिंग में कौन से नंबर का फैक्टर था? कैल्शियम। हाँ जी, बताइए। हेलो, बताइए। क्या सर? यस सर, सेकंड, कैल्शियम सेवेंथ, नाइन्थ और 10th। नहीं, कैल्शियम कौन से नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर था? 4th। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें आप पढ़ते ना, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम। कैल्शियम इज द 4th वन ना। कैल्शियम, देन लेबाइल फैक्टर, ऐसे पढ़ते हैं। याद आ गया नहीं? हाँ सर। ओके, यस सर। ओके। और आपको जब एंजाइम्स पढ़ाए जाएंगे तो एंजाइम में एंजाइम इनहिबिशन एक टॉपिक आएगा। उस एंजाइम इनहिबिशन में पढ़ेंगे विटामिन के का जो की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, दैट इज द डाइक्यूमेरॉल। डाइक्यूमेरॉल ड्रग। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव से जो शो हो रहा है दैट इज द डाइक्यूमेरॉल ड्रग। तो विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, उसका जो अपोजिट एक्शन होगा वो डाइक्यूमेरॉल ड्रग के द्वारा होगा। ओके, ये सब कुछ आपको बता दिया अलग तरीके से, वो वाला फॉर्म ठीक है, आपको परेशान नहीं होगा। विटामिन को हाइड्रोक्सीक्विनोन फॉर्म, तो यहाँ पे प्रोटीन जो ग्लूटामिक एसिड था, बाय द कार्बोक्सिलेशन इट कन्वर्ट टू द गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। Then role of gamma carboxyglutamate in clotting. The gamma carboxyglutamic acid residue of clotting factor which are the negatively charged। ये पीजी वगैरह के पर्पज से आप मान सकते हैं, which are the negatively charged and they combined with positively charged calcium ions। उसी की वजह से उसको चिलेट कर रहा है। Okay, the gamma carboxyglutamic acid residue of clotting factor are negatively charged and they combined with positively charged calcium ion
to form a complex. So the prothrombin calcium complex bind to the phospholipids on the membrane surface of the platelets. This leads to the increased conversion of prothrombin to thrombin. Okay, it's the main role of glutamic acid, gamma carboxyglutamic acid in blood clotting. Prothrombin convert into the thrombin. ये MCQs वगैरह में भी आ जाता है आपके. Okay. Vitamin K is also important in synthesis of bones calcium binding protein. That is a osteocalcin, which is a bone protein which require vitamin C, vitamin D and vitamin K. विटामिन सी के बारे में हम आपको बताएंगे कि विटामिन सी जो है इसमें क्या होता है कि विटामिन सी की इंपॉर्टेंस आगे आएगी तब आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में. हाउ विटामिन सी हेल्प्स टू फॉर्मेशन, हाउ विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ बोन्स. ओके, कोलेजन फॉर्मेशन में बेसिकली विटामिन सी का इंपॉर्टेंस है. कोलेजन फॉर्मेशन, some other proteins like bone protein, osteocalcin, which also undergo carboxylation reaction, and for this carboxylation reaction vitamin K is required. Osteocalcin also contain the proline which also needs vitamin C for hydroxyproline formation. तो proline and lysine तो ये present होता है. तो proline which get converted into the hydroxyproline by the vitamin C के एक्शन के द्वारा, विटामिन सी के एक्शन के द्वारा प्रोलीन जो है वो हाइड्रोक्सीप्रोलीन में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोलीन और लाइसिन वहां पे आप पढ़ाया जाएगा विटामिन सी में आपको बेसिकली. ओके, सो विटामिन के इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ बोन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स. ओके, देन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के. Deficiency of vitamin K is very rare since most common food contain this vitamin, as well as some intestinal flora of microorganism also synthesize vitamin K. Intestine में जो microorganism है वो भी vitamin K की synthesis कर देते हैं. Okay, जिससे हमारा supplementation पूरा हो जाता है. But however deficiency may occur as a result of prolonged use of antibiotics. अगर एंटीबायोटिक ले रहा है कोई पर्सन एक्सेस में जो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, तो वो एंटीबायोटिक से क्या काम करेंगे, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं उनको मार देंगे. और इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया अगर वो मर जाएंगे तो विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होगी. ओके, thus making vitamin K2 is not available. इसके साथ साथ क्या हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन है एंड बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन as well as in chronic liver disease. Deficiency of vitamin K will be there, and in premature infants and in newborn babies, premature infants are unable to store vitamin K due to the prematurity of their development. तो जो premature infants हैं उसमें vitamin K की deficiency हो सकती है, newborn baby में, premature baby में, infants में. Okay. इसके साथ साथ जो उनकी जो मदर है अगर वो भी ऑलरेडी जो है उसमें भी पुअर विटामिन के का स्टोर है, उसकी वजह से भी न्यूबॉर्न बेबी में जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है. ओके, एज वेल एज प्रोलॉन्ग यूज ऑफ वारफेरिन. वारफेरिन आपको बताया था, दो ड्रग बताई थी, डाइक्यूमेरॉल एंड वारफेरिन. these show the antagonist property of the vitamin K, मतलब जस्ट अपोजिट एक्शन शो करेंगे. विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है तो वो जो है blood clotting रोकेंगे. Okay, so the prolonged use of warfarin which can cause the deficiency of vitamin K. Okay, ये तो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाए. Prolonged use of warfarin in many disease like heart attack, मतलब हार्ट अटैक में भी जो है वारफेरिन अगर दिया गया है पेशेंट को, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वारफेरिन इज यूज्ड एज अ एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी. तो अगर वारफेरिन पेशेंट को दिया जा रहा है उस कंडीशन में विटामिन के जो है, विटामिन के अपना प्रॉपर्ली एक्शन शो नहीं करेगा तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. ओके, then the manifestation of vitamin K deficiency. Deficiency of vitamin K leads to the lack of active prothrombin in the circulation. तो आपने देखा था कि prothrombin get converted into the thrombin.
तो जो वो प्रोथ्रोम्बिन, lack of active prothrombin in the circulation, the result is that blood coagulation is adversely affected. ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो वो ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टेड इन विटामिन के डेफिशिएंसी. सो अब जब ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इंडिविजुअल ब्लीड्स प्रोफुजली इवन फॉर माइनर इंजरी. हल्की फुल्की चोट लगी उसके बाद भी जो है उसका ब्लड क्लॉट होने में नहीं आ रहा है. मतलब मान लीजिए किसी को शेव करने से भी अगर हल्का सा कट लग गया तो वो भी उसका क्लॉट जो है वो हो नहीं पा रहा है. इट इज द लैक ऑफ विटामिन के. एंड सम हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न seen in premature babies, showing hemorrhage in the mucous membrane, GIT, retina, and in the brain. Okay. Diagnosis of vitamin K. How you will diagnose the vitamin K deficiency? तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा. प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा. व्हाट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिटेल में जो है. तो नॉर्मली जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है दैट इज अबाउट 11 to 14 seconds. So there is increase in the prothrombin time in diagnosis of vitamin K deficiency. Okay. And the daily requirement is about last RDA is a 50 to 100 mg per day, but this is usually also available in normal diet. And source, green leafy vegetables are the good sources of vitamin K. Vitamin K2 can be synthesized by the intestinal bacteria. तो जब इंटेस्टाइन में मिल रहा है, इंटेस्टाइन में सिंथेसिस हो रही है विटामिन के की, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमारी वहां से पूरी हो जाती है. लेकिन अगर कोई पर्सन एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा ले रहा है, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसकी वजह से विटामिन के की कमी भी हो सकती है. ओके. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक दिस. और एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर रहेगा, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन अदर स्टोर्ड रहे, अदर का एब्जॉर्प्शन हुआ है, सो इट रिक्वायर बाइल सॉल्ट्स फॉर देयर एब्जॉर्प्शन. ओके. इट्स एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस अलोंग विद फैट काइलोमैक्रोन जो आपने लाइपोप्रोटीन्स में पढ़ा हुआ है, एंड इज डिपेंडेंट ऑन बाइल सॉल्ट्स. Okay, vitamin K is transported along with LDL and is stored mainly in the liver and to lesser extent in other tissues. तो जितने भी fat soluble vitamins हैं वो stored रहने हैं liver में basically. Okay, that's all about the fat soluble vitamins. Okay, so in next class we will start with the water soluble vitamins. And it will be the 11th or 19th or 19th. On 19th May we will start with the water soluble vitamins. Okay. Okay, students. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, Thank next you, class. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay. This conference is no longer being recorded.